गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ मेडिको मैन चैनल। तो मेरा नाम है आकाश। तो आज से मैं एक शो चालू करने वाला हूँ, ठीक है, मेडिको मैन इंडिया शो। तो ये मेरा पहला एपिसोड है, ठीक है। तो इन दिस फर्स्ट एपिसोड आई एम गोइंग टू कॉल 2 न्यू members, okay. Those 2 are the second year, like now third year MBBS students, okay. They are from that batch which is going to write next exam, okay, that is 2021 and 2022 batch, okay. So today in this video we will know about their personal experience about second year and MBBS career, and also about the basic requirements and basic doubts about next exam, okay. And we will have fun kind of thing, okay. As this is my first episode, even I am new to it, so let's enjoy together, okay. So first of all I would like to introduce both of them, okay. So here is Prabhuling and Chetan. Both are from Gulbarga Institute of Medical Science, Kalburgi, and both are like good persons, okay. And I know them very much well, and they are guest of our first episode. So let's start. A few inches later. So guys, तो पहले चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ, ओके. तो both are like shy kind of person and both like get scared of camera, okay. So मैं स्टार्टिंग ही एक अजीब तरीके क्वेश्चन से चालू करूंगा, ठीक है, सो दैट दे गेट कंफर्टेबल टू इट, ओके. सो प्रभुलिंग एंड चेतन, ओके, हैव आप लोगों का कभी रैगिंग हुआ है लाइक MBBS कॉलेज में? नॉट सो रियली, बट इंट्रोडक्शन हुआ था बस. चेतन, काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन हुआ था. ओके, इंट्रोडक्शन हुआ है. प्रभुलिंग, आपका रैगिंग हुआ है? एक्चुअली इनिशियली इंट्रोडक्शन हुआ था, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज मैं थोड़ा डरता था. एंड इवन तो रैगिंग वगैरह मुझे उतना पता भी नहीं था कि ऐसा होता है. कि मेरे फ्रेंड्स बताते कि हाउ वाज इट इन द हॉस्टल एक्सपीरियंस. दे से दैट इट इज़ वेरी हॉरिबल एंड इट इज़ लाइक अ नाइटमेयर फॉर देम. एंड आई थिंक it should be there at some extent. It is good for the interaction between seniors and the juniors at some extent, and some introductory part, some funny part, it is okay. But when it comes to some dominance and some it comes to seniority and some it comes to toxicity, it is very horrible. And I think I don't prefer to do that, even though I tell some juniors that please don't call me sir, like I am like your friend, something like that. Okay, so yeah, both the students are very good students, and they have not much known about ragging, or neither they did ragging to their juniors, okay. So I hope they get adapted to this questionnaire kind of thing, okay. So moving on to basic thing. So Prabhuling has scored distinction in second year, okay. So most commonly I should ask the question. So Prabhuling, would you like to give some advice to second year students so that they can get distinction in their second year MBBS? So I think to get distinction in second year, I probably see that daily studies and discipline is main. Because the thing is that there is a huge syllabus in comparing to pharmacology and microbiology. As pathology is somewhat it is easier, but pharmacology in terms of drugs, and many of them write drugs like adverse effects as nausea, vomiting, like that. If we do that in final examination, that's not going to work. But I think that regular work and regularly if we study, because I studied in the regular way, and even I started from the initially, because I thought that in first year I didn't start anatomy initial, but because I didn't get what is there in anatomy, something like that, because initial part of anatomy was so boring, because I didn't get it what is the anatomy, something like that. But when I came to the second year, आई थिंक दैट मुझे फंसना नहीं है यहाँ पर, मुझे इस बार तो अच्छा मार्क्स लाना है. तो आई स्टार्टेड विथ फार्मेकोलॉजी, देन माइक्रोबायोलॉजी, बिकॉज आई थिंक दैट फार्मेकोलॉजी इज समवॉट ईजी देन कंपेयर टू माइक्रोबायोलॉजी, बिकॉज माइक्रोबायोलॉजी इज लाइक रट्टा मारना जैसा है, क्योंकि वहाँ पर कल्चर याद रखना और स्पेसिमन के बारे में सब कुछ जो होता है ना. तो आई थिंक दैट मेकिंग अ शॉर्ट नोट्स ऑन दैट, और अपना ही खुद का नोट्स बनाना चाहिए फॉर माइक्रोबायोलॉजी एंड फार्मेकोलॉजी, सो दैट उनको ही अंडरस्टैंड होना चाहिए. रैदर देन क्या होता है कि लास्ट टाइम में अगर एग्ज़ाम के 1 महीने के पहले अगर आप स्टार्ट करोगे तो कुछ नहीं होने वाला. आप पास हो सकते हो, लेकिन डिस्टिंक्शन इज़ नॉट सो ईजी, बिकॉज अगर आपको डिस्टिंक्शन भी चाहिए तो मैं अगर मेरा बताऊं तो मैंने एग्ज़ाम से पहले प्रोबेबली 2 आवर और 3 आवर सिर्फ उतने ही घंटे सोया था मैंने.
that make me to get this marks because मुझे थोड़ा टफ रहता था क्योंकि मुझे मेरी ग्रैबिंग पावर थोड़ी कम है और मेमोरी भी थोड़ी कम है, तो that's the thing. But if you do regularly and if you study well, if you are oriented to the classes, not so better, but even though towards your studies, then you can get easily. Okay, like Prabhuling has said, he said simply, okay, two things. Consistency is the key to success, okay. तो consistency से पढ़ोगे तो डिसीजन आना easy होगा. और next है hard work. Hard work is must. If you know like आपकी कैपेबिलिटी क्या है वो जानो, उसके हिसाब से आप मेहनत करोगे तो डिसीजन आना और ज़्यादा easy है, ठीक है. और स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो ऑलवेज पढ़ते रहिए तो आपका भी आराम से डिसीजन आ जाएगा, ठीक है. डिसीजन आने से या ना आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इवन मी और माई फ्रेंड्स और द पर्सन हु स्कोर द डिसीजन विल ऑल्सो गेट प्रमोटेड टू नेक्स्ट ईयर, ओके. सो एक सादा सा गोल्ड मेडल मिलेगा, ठीक है. तो गोल्ड मेडल का भी लाइक रेस्पेक्ट मिलेगा, ठीक है. डिसीजन आने से रेस्पेक्ट मिलेगा और ज़्यादा कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते. इट्स ऑलमोस्ट सेम, ओके. सो इट्स अप टू यू. इफ़ यू रीड इट्स गुड, reading is good, study is good, okay. So moving on to next question, okay. So next question बोल रहा हूँ तो next के बिना तो नहीं चल सकता, ठीक है. चेतन, आपका बैच पहली बार नेक्स्ट लिखने जा रहा है, ठीक है. 2021-2022 बैच इज गोइंग टू राइट नेक्स्ट एग्जाम एंड दिस केम अंडर एनएमसी सर्कुलर. ऑलरेडी मैंने वीडियो पोस्ट कर दिया है, ठीक है. लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वो वीडियो भी देख लेना, ठीक है. आपको पता चल जाएगा कि नेक्स्ट एग्जाम क्या है, कैसा है और उसका पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है और कौन सा बैच लिखने वाला है और कब लिखने वाला है, ठीक है. सो 2021-2022 बैच इज गोइंग टू राइट इन 2026, ओके. तो ये दोनों लड़के जो देख रहे हो वो लोग वही होंगे जो पहली बार नेक्स्ट लिखने वाले हैं, ठीक है. तो चेतन, नेक्स्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है? Talking about next exam, the major change happened is the exam which we would have written after the internship is now preponed, like we have to write before the internship, before we get into the internship, and the classes are going as if now normally and there are no changes made in the schedule of the classes. Okay, problem. आप नेक्स्ट के बारे में क्या कहना चाहते हो? नेक्स्ट आई थिंक नेक्स्ट कुछ थोड़े मॉडिफिकेशंस है नीट में, आई थिंक बिकॉज नेक्स्ट ऐसा है कि थोड़ा शॉर्टकट जैसा है, शॉर्टकट है लेकिन उसमें थोड़े पढ़ाई ज़्यादा करना पड़ता है. और नेक्स्ट में मुझे ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा हार्ड होगा. इट विल बी ईजियर आई थिंक बिकॉज यहाँ पर हम नीट ही लिख रहे हैं लेकिन थोड़े अल्टरनेट वे में, मॉडिफाइड वे में लिख रहे हैं बिकॉज ओवरऑल सब्जेक्ट्स भी वही है और पैटर्न में थोड़ा चेंजेस हो सकता है. बिकॉज मैंने पढ़ा है कि वहाँ पर 3 दिन हो गए और बीच में एक टाइम रहेगा मेजर, ऐसे कुछ मेरे हिसाब से, अगर मैंने थोड़ा नॉलेज है उसके बारे में. नेक्स्ट इज आई थिंक जो जेन्यून डॉक्टर्स होते हैं ना वो बाहर आएंगे. आई थिंक इट्स द बेस्ट थिंग फॉर मेकिंग नेक्स्ट एज एस्टेब्लिशमेंट इन फ्यूचर बिकॉज उससे जेन्युइन डॉक्टर्स बाहर आएंगे. एंड जो नीट में होते हैं वहाँ पर पैसे देकर एज अ सीट ले लेते हैं, बट इन नेक्स्ट आई थिंक वहाँ पर एटलीस्ट समथिंग, आई थिंक मैंने जब उसके बारे में पढ़ा था तब वहाँ पर देखा था कि 50% इज़ रिक्वायरमेंट इन द नेक्स्ट. तो उसकी वजह से तो आप वहाँ पर तो कुछ कर नहीं सकते, आपको पढ़ना ही पड़ेगा. यू हैव टू स्कोर बेटर मोर देन 50%. अगर आपको आपकी डॉक्टरेट भी लेनी है तो भी आपको 50% से ज़्यादा ही चाहिए. सो आई थिंक नेक्स्ट इज़ गुड. आप एक जेन्युइन डॉक्टर को बाहर ला सकते हैं इन फ्रॉम अ मेडिकल कॉलेज. सो इट्स वेरी गुड. बट अगर आप देखेंगे तो नीट वॉज ऑल्सो गुड, बट थिंग इज़ दैट देर वॉज समथिंग लाइक पैसे से वहाँ पर मेडिकल सीट खरीद सकते थे, पीजी सीट्स, बट यहाँ पर तो आपकी नॉलेज इंपॉर्टेंस रहती है. सो आई थिंक इट्स गुड, बट हमारे से नहीं शुरुआत होनी चाहिए थी. तो we already listened from Prabhuling, okay. So next exam has very much benefits and but he is also willing like it should not be from them, okay. So I think उनको directly next introduce नहीं किया जाएगा, उससे पहले एक मॉक एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद उनको नेक्स्ट ले दिया जाएगा, ठीक है. तो ऐसा नहीं कि लाइक सडनली आपको नेक्स्ट लिखना होगा बोल के ये कर दिए. ऑलरेडी एनएमसी ऐसा है, ठीक है. वो जब चाहे तब उनका मनपसंद डिसीजन लेता है और जब चाहे वही चीज़ करता है, ठीक है. हम चाहे जो बोले या ना बोले, ऑलरेडी एनएमसी 36,000 रिव्यू लेने के बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया कि लाइक नेक्स्ट करने वाला है, ठीक है. पर 2022 में इट इज़ डिसाइडेड एनोनिमसली, ओके. एनोनिमसली डिसीजन लिया है और आप देख सकते हो स्लोली सारे स्टेट्स भी ये सब चीज़ें इंप्लीमेंट करने लगे हैं, ठीक है. आरजीएचएस ने ऑलरेडी 3rd ईयर से ईएनटी और ऑफ्थल हटा दिया है, लाइक, और अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ ने भी ईएनटी ऑफ्थल हटा दिया है. सो चेतन, तो आप ना 3rd ईयर में ईएनटी और ऑफ्थल के एग्जाम नहीं लिखोगे, इसके ये अच्छी बात है क्या? इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो?
मुझे लगता है कि वो थोड़ा फोर्थ ईयर में थोड़ा सब्जेक्ट हैवी हो जाएंगे, क्योंकि दो सब्जेक्ट साथ में पढ़ना पड़ेगा। कैसे भी हमें पीजी के लिए तो पढ़ना ही था, मगर अब जो नेक्स्ट आने वाला है वो हम इंटर्नशिप के पहले ही जो फोर्थ ईयर का एग्ज़ाम था वही रिप्लेस कर दिया गया है नेक्स्ट से। तो थोड़ा Yes. प्रिपरेशन में थोड़ा जल्दी अर्ली स्टार्ट करना पड़ेगा शायद। ओके चेतन इज 100% करेक्ट। ओके, तो इसका बोलने का ये चेतन बोलना चाहता है कि लाइक थर्ड ईयर में सिर्फ एफएमटी और कम्युनिटी मेडिसिन है। इसका मतलब ये नहीं कि लाइक वो 2 सब्जेक्ट पढ़ के आप मजे करने लग जाओ। यहीं से आप लोगों को बाकी क्लिनिकल सब्जेक्ट विच आर स्टडिंग इन योर फाइनल ईयर ऑलरेडी उनका प्रिपरेशन चालू कर देना चाहिए। लाइक साइकेट्री, ऑर्थोपेडिक्स, ईएनटी, ऑफ्थाल, ऐसे छोटे छोटे सब्जेक्ट्स आप थर्ड ईयर में पढ़ सकते हो। और बाकी बड़े बड़े सब्जेक्ट्स लाइक ओबीजी, सर्जरी और मेडिसिन, ये सारी चीज़ें आप फाइनल ईयर में रख सकते हो और अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकते हो। नहीं तो आप थर्ड ईयर में ही मेडिसिन और एक बड़ा सब्जेक्ट तो पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हो। लाइक यू शुड बी हेल्पफुल इन योर फाइनल ईयर, बट आई थिंक दे शुड रीड एवरीथिंग एज ऑफ लाइक टाइम एंड दे शुड फिनिश एज अर्ली एज पॉसिबल सो दैट दे कैन कोप अप विद द नेक्स्ट एग्जाम। ओके, तो पता नहीं कि लाइक इन 2021-2022 बैच वाले उनको अपोज भी कर सकते हैं, वापस से केस कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। पर अभी फिलहाल तो उनको नेक्स्ट है और आई फील इट विल बी देयर फॉर देम। ओके, तो प्रॉब्लिंग यू हैव एनी क्वेश्चंस लाइक तुम मुझे पूछना चाहते हो और लाइक आई वुड लाइक टू आंसर इट। You are making a very good videos on the contents, like some of the basic things of any subjects you make with your talent of studying, and like you are going very good way, but मुझे लगता है कि आपको और videos ऐसे ही डालने चाहिए। आप कहीं भी रुकना मत कि क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहे, ऐसे कोई सीन्स नहीं है। आप बहुत आगे बढ़ोगे, बट आपको सपोर्ट करने वाला चाहिए। आपके सपोर्टर्स हम हैं, आप चिंता मत कीजिए। दैट्स द थिंग, आप अच्छे कीजिए आगे में। Thank you, Prabhuling, for this motivation. Like, thanks a lot. I too agree with the Prabhuling, what Prabhuling has said. You are making very such good videos about medical education and all. And don't stop making these videos and do it as long as you can. Yes, thanks a lot. Okay, so ये दोनों जो है चेतन और प्रभुलिंग बहुत ही शाई काइंड ऑफ लड़के हैं, ठीक है। उनके मुंह से आवाज़ निकलवाना ही लाइक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और मैंने उनको फर्स्ट एपिसोड में गेस्ट इसलिए रखा है कि लाइक वो मेरे से वेल नोन है और मैं ये नहीं चाहता कि लाइक मैं रैंडमली किसी को अचानक से फर्स्ट एपिसोड में बुलाऊँ, ठीक है। तो फर्स्ट एपिसोड इज लाइक एक्सपोजर एंड इट इज़ अ ट्रायल काइंड ऑफ थिंग। ओके, सो ऑलरेडी हम लोगों ने नेक्स्ट के बारे में बताया है, ठीक है। हाँ, एक और डाउट था, मोस्ट कॉमन डाउट दे हैव आस्क्ड मी, लाइक कुछ लोग हो रहते हैं लाइक 2020 बैच के हैं पर फेल होके अभी वो फर्स्ट ईयर में गए थे, तो अब वो हमारे जूनियर वाले बैच में है, तो क्या वो नेक्स्ट लिखेंगे, क्या नीट पीजी लिखेंगे, वो वाले डाउट पूछ रहे थे। तो आई फील कि लाइक वो नेक्स्ट ही लिखेंगे क्योंकि उनका ऑलरेडी ईयर बैक हो चुका है। तो एज नेक्स्ट इज अ लाइसेंसेट एग्जाम, ऑल्सो है पीजी एंट्रेंस एग्जाम, तो उनको बिना एमबीबीएस डिग्री मिले तो नीट पीजी लिखने नहीं देते, तो इसलिए वो नेक्स्ट ही लिखेंगे, ठीक है। तो आई फील एंड नेक्स्ट इज नॉट फॉर 2020 बैच बिकॉज हमने ऑलरेडी ENT ऑफ द एग्जाम लिखा है। पर इसका मतलब ये नहीं कि लाइक NMC हमको नेक्स्ट नहीं लिखवा सकता, अब उनकी मर्जी। NMC नशे करके रूल्स बनाता है, तो अभी वो हमें भी चिपका सकते हैं, नहीं तो हमारे जूनियर बैच को चिपका सकते हैं। जिसको भी चिपकाए इट्स अ गुड ओनली। ओके, नेक्स्ट इज नॉट सो बैड, हम जितना बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बहुत अच्छा है, जैसे प्रॉब्लिंग ने बोला, नेक्स्ट इज अ वेरी गुड थिंग। ओके, सो डोंट गेट स्केर्ड ऑफ इट। गाइस, यहीं पे हमारा वीडियो खत्म होता है। आई वुड लाइक टू थैंक बोथ प्रभुलिंग एंड चेतन फ्रॉम गुलबर्गा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस शो, and I'm very happy like they are heavily supporting me and the reviews which I have given are very much valuable for us. Okay, that's it. See you all in the next episode. और next episode में मैंने एक special guest को बुलाया है who has 20,000 subscribers, okay, on YouTube, and he is very much known to me, and कौन होगा वो, ठीक है, who is guest in second episode, so we will see it soon. So लगे रहिए मेडिकोमैन इंडिया शो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।